हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। ये चैप्टर जो है 26 है, जिसमें हम इंडियन एज ए फॉरेन पॉलिसी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, यानी भारत की विदेशी नीति क्या है। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस में पढ़ते हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चों, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, अगर सिलेबस में इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, भारत की विदेश नीति है, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैप्टर में हम विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, और ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here, Indian as a is a foreign policy. There is the most important. There is important also the important point here. A major concern in the Indian as a foreign policy in the post Cold War period. There is the most important. The Indian as a foreign policy in the post Cold War period. The end of Cold War in 1989 was both about the significant change in the international scenes and hence a new policy problem for a various states in the developing world, including India. The new situation is made by great disparity of complexity. For India, is the discriminations of the Soviet Union has a means of uncertainty of several except by supply of weapon system, supply of spare parts, and diplomatic support on Kashmir and other is a political status issue in and outside the United Nations, and as a counter the bait to the USA in the South Asia. During the last one decade and a half of international politics has undergone major changes. The Cold War has ended, the world has become a unipolar. A number of states have declared it is a Cold War. A military bloc has lost their significance, and some such as bloc have dissolved and new regional economics bloc are shaping up, and globalization has giving rise to a new set of problems such as terrorism, money launderings and proliferations of weapons, global warming, etc. These problems are not endemic to any region but affect all the countries to some extent or other. This has forced many nation states which were a hetero to the enemy to the cooperate with each other to solve the problem which are universal in the nature. In this change international scenario, it has become imperative for a UNA to restructure and reform itself if it is to effectively respond to the emerging challenge. There is the most important. There is emerging of challenge. Military in Kashmir has emerged as the foremost challenge to our foreign policy. Pakistan and the Western countries blame India for violating human rights and denial of right to be self-determination. Gradually, India brought a situation under control. Because of the Kashmir, Egypt of India is as a relation with the Pakistan sharply integrated. India is access to Pakistan of fanning travel through their crossed border
terrorism in Kashmir and other part of country. India is conducted nuclear weapon test in 1998 is followed by Pakistan as tests. Pakistan destroyed to the further is a missiles by the securities as sending its a soldier into the Kargil in order to cut off the Kashmir Valley from the rest of India. The India handled it to the challenge forming on effective. Now emerging Pakistan as a contractives and is a composite dialogues per se remain a challenge to India as a foreign policy because there is a great deal of push from the United States. Spread of terrorism to the corner behind is a Kashmir is a challenge as well as a opportunity for our foreign policy. Nowadays, India is interesting in a foreign anti-terrorism coalition with many countries as a possible. That is the most important. Keeping so old is a friendship and looking for a new friendship in another challenge for our foreign policy. After the Cold War is ended, for example, India is interested in a strengthening of the relation without damaging in relation and the relation with their Arab countries. Similarly, India's foreign policy is a tackling is a new task like a deepening is economic and security cooperation with the United States will at the same time opposing the unilateral action against the Iraq, Yugoslavia. Finally, India is realizing the growing importance of economical aspect of foreign policy. And it is a try to establish a new basis for its relation with the neighborhood and countries in South Asia, China and South East Asia countries. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जिसमें हम भारत की विदेश नीतियों के जो है विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसका दूसरा पॉइंट यही बताता है कि शीत युद्ध काल के बाद भारत की विदेश नीतियों के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे। यानी जब शीत युद्ध के काल के बाद जब शीत युद्ध खत्म हो गया था तो भारत की विदेश नीतियों के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे। कहते हैं 1989 में शीत युद्ध के अंत के बाद, देखिए यहाँ पर 1989 दे रखा है शीत युद्ध के अंत। देखिए ये तो जो दिया गया है 1989 वो डिक्लेयर किया गया था, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो 1991 में जो था बिल्कुल ही खत्म हो गया था जब सोवियत यूनियन भंग हो गई थी। यानी जो था बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, उस समय से जो है इसको वास्तविकता में माना गया। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय परिषद में महत्वपूर्ण बदलाव आए और इस प्रकार विकासशील देशों के लिए नीति संबंधी नई समस्याएं आई। यानी कोई भी देश अगर बनता है, कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो उसमें बहुत सी समस्याएं आती है, ये आपको भी पता है। जैसे मुझे हर एक बच्चा जो है कमेंट करते हैं कि सर आपका देखता हूँ समझ आता है, लेकिन दोबारा मैं रिसर्च करता हूँ तो नहीं आता है। तो मैं उन सभी बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करने में ही आपकी भलाई होती है। और बहुत से बच्चे ये भी कंप्लेंट करते हैं कि जब भी मैं रिसर्च करता हूँ दूसरे के वीडियो ही आते हैं। तो यही बात तो मैं भी आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि तभी आप मेरे वीडियो को फ़ायदा उठा सकते हो जब चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे। और दूसरी बात ये भी रहता है कि हमेशा ये भी कहता हूँ मैं कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प भी करना है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं दिया जाए तब तक जो है कोई भी नीति या कोई भी रूल रेगुलेशन सही से नहीं चल सकता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे कोई युद्ध का हो, चाहे राजनीतिक का हो। हर जगह जो है सभी की सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना सहयोग से कुछ भी नहीं चल सकता है। तो यही बात यहाँ पर भी बताया गया कि इस प्रकार विकसशील देशों के लिए नीति संबंधी नई समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि नई चीज़ बनाई गई, नई समस्या तो आना स्वाभाविक बात ही थी। यह नई स्थिति एक बड़ी ही जो कहते हैं अनिश्चितता और जटिलता का परिणाम ही था। भारत के जो लिए संबंधित संघ के जो है विघटन से कई अनिश्चितता उत्पन्न कर दी। यानी सोवियत संघ के विघटन के कारण कई बातें जो थी भारत के समक्ष जो है प्रस्तुत हो गई, जैसे कि युद्ध सामग्री की आपूर्ति, स्पेयर पार्ट की आपूर्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर और बाहर कश्मीर और अन्य राजनीतिक मामलों में राजनीतिक समर्थन, और जो है दक्षिण एशिया में अमेरिका का विरोध पक्ष। तो ये सारी बातें जो थी भारत के लिए एक अनिश्चितता का दौर उत्पन्न कर दी। पिछले 1.5 दशक में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए और शीत युद्ध के अंत हो चुका है और विश्व एक ध्रुवीय बन गई थी। कई राष्ट्र विघटित भी हो चुकी थी और शीत युद्ध जो है सैन्य गुटों ने अपनी महत्ता
खो दी थी। यानी शीत युद्ध की जो था सैन्य गुट में जो बिल्कुल ही महत्ता खत्म हो गई थी। इस प्रकार के गुट जो थे भंग हो चुके थे और नए क्षेत्रीय आर्थिक गुट बन रहे थे। वैश्वीकरण ने नई समस्याओं को जन्म दे दिया और जैसे कि आतंकवाद, मृदा समृद्धि, युद्ध शास्त्रों की संख्या में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग आदि। कहते हैं जैसे ही दो ध्रुवीय का जो है अंत हुआ, बहुत मुद्दे जो थे सामने खड़े आ गए, जिसमें से आतंकवाद जो था सबसे बड़ी मुद्दा और सबसे जटिल मुद्दाओं में से एक मुद्दा था। ये सभी समस्याएं किसी क्षेत्र विशेष को नहीं थी, बल्कि सभी देशों को किसी न किसी सीमा तक प्रभावित जरूर करता था। यानी देखा जाए तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बोला था वो सिर्फ एक देश की समस्या नहीं हो सकती है। यानी आतंकवाद, मृदा समृद्धि, युद्ध शस्त्रों की संख्या में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो थी विश्वव्यापी थी और हर देश जो था इससे जो दो चार हाथ कर रहा था और ये बहुत बड़ी विडंबना थी सभी देशों के लिए। इसके कारण वे देश जो अभी तक समस्याओं का हल करने में सहयोग देने को तैयार नहीं थे और स्वभाव से एक ही प्रकृति के थे, वो भी सहयोग के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि समस्या बहुत जटिल थी और सभी देशों को समर्थन प्राप्त होना भी स्वाभाविक बात थी। इस परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संयुक्त के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह इन चुनौतियों का प्रभावकारी उत्तर देने के लिए स्वयं को परिवर्तन कर दे। ये बहुत ज़रूरी बात थी। यहाँ पर हमारी विदेश नीतियों के लिए कश्मीर में आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारे देश के लिए विदेश नीतियों के अंतर्गत कश्मीर जो है आज भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रखी है और इसमें खड़ी जो कर रही है आतंकवाद ही कर रही है और आतंकवाद जो है सदैव चुनौती भारत को देती ही रहती है। पाकिस्तान और पश्चिमी देशों ने भारत पर मानवाधिकार के हनन और आत्मनिर्णय के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप सदैव लगाता ही रहा है, परंतु धीरे धीरे भारत इस स्थिति को नियंत्रण में ला रहा है। कश्मीर विवाद के कारण भारत पाक संबंध तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को जो है सीमा पर आतंकवाद और देश के अन्य भागों में आतंकवाद फैलाने का जिम्मेवार ठहराया है। यानी भारत ने सदैव ही पाकिस्तान को जो है आतंकवाद की जो है क्रियाकलाप में जो है दोषी पाया है। 1998 में जो है भारत ने परमाणु परीक्षण किए और उसके बाद पाकिस्तान ने भी ऐसे परीक्षण किए। पाकिस्तान ने संदेशपूर्ण रूप से कारगिल में अपने सैनिकों को भेजकर कश्मीरी घाटी को भारत से अलग करने का एक और अनिष्ट कार्य किया। भारत ने इस चुनौती का जो है दृढ़तापूर्वक सामना किया और अब पाकिस्तान को सकारात्मक और सर्वैकता वार्ता द्वारा समझाना भारत की विदेश नीति की एक अहम चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान को समझाना बहुत ही दुर्गम कार्य है, क्योंकि इसके पीछे उसे अमेरिका की शय प्राप्त है। कश्मीर के जो है अतिरिक्त अन्य हिस्सों में भी आतंकवाद को रोकना भी हमारी विदेश नीति के लिए एक अवसर और चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। भारत के अधिकांश देशों के साथ आतंकवाद विरोधी संबंध बनाने में गहरी रुचि है और भारत ने सदैव ही इस आतंकवादी के प्रति जो है अपना रवैया प्रस्तुत किया है और इनका जो रवैया थी हमेशा पॉजिटिव थी। शीत युद्ध के अंत के बाद पुराने मित्रों को कायम रखना और नए मित्र तलाशना भी हमारी विदेश नीति के लिए एक अन्य चुनौती थी। उदाहरण, अरब देश के साथ संबंधों को खराब किए बिना ही भारत इजराइल से अपने संबंध मजबूत करने के इच्छुक है और इसी प्रकार भारत की विदेश नीति का एक कार्य अमेरिका के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाना भी एक इम्पोर्टेंट कार्य में से देखा जा सकता है। परंतु इसके साथ ही वह इराक और यूगोस्लाविया के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई के विरुद्ध है। अंत में भारत अपनी विदेश नीतियों में आर्थिक पक्ष के महत्व को महसूस कर भी रहा है, इसलिए यह अपने पड़ोसी देश चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ संबंधों का एक नया आधार देने के लिए प्रयासरत है। The next our most important topic here, India and United Nations. There is the most important topic. There is the first point here. India has a contribution to UN effort for the peace and discriminant. There is the most important topic arrive here. The United Nations, which is come into the begin on October 24, 1945, has been the most important international organization since the Second World War, the formal basis for the UN activities in the UN Charter. The UN has a vital role in the world affair. For more than 50 years, UN has helped to the manage relation between two states and regulate a broad range of international activities. It has worked to protect the security of people and promote the peace and development.
One way in which the UN has contributed to world peace is by taking up the cases of discriminant. India has also contributed in naming to UN the agreement of efforts. And discriminant is a limitation, reduction, and possible elimination of dangerous, like a nuclear weapon. That is the most important. Since the independent India has a constantly is a pursued their objectives of global discriminant based on the principle of non-discriminations and given to the destructive capacity of nuclear weapon, India has a way believe that a world free of nuclear weapon would be enhanced to the global security. Thus, the India has a way advocate the highest priorities to be given on nuclear discriminant as a first step toward a general and complete discriminant. That is the most important here, but India has a contribute to the UN significantly on discriminant in the term of idea, dissolution, innovative, and the bearings of difference through the action plan. In 1949, India has proposed to the eliminating the use of atomic energy to peacefully purpose and elimination of the nuclear weapon from the national arsenal. In 1950, India suggested the formation of the UN Peace Fund created through the peaceful reduction of arms and directing the amount thus the release toward to development purpose. In 1954, India is advocated the causes for the comprehensive nuclear test ban threatening. India was the first to become a party to the potential test ban treaty in 1963. Hence, India strongly and constant refused to join the treaty. In 1964, India took initially to the pace the items known for is a proliferation of weapon or UN agenda. However, the purpose was defeated by the 1969 carry that the large numbering of countries from going nuclear without firm restriction on the few nuclear weapon country activities. Nuclear non-proliferation threatening, although there is our countries alleged to be opposed to the problem. In 1984, India is launched a six-nation, five-continent base initiative to along with the Argentina and Greece, Mexico, Sweden, and Tanzania. 4 years later, in a joint to the declaration issued on the occasion of visit to President Gorbachev of Soviet Union of Prime Minister. The President of Gorbachev is the Soviet Union, the Prime Minister Rajiv Gandhi made a peaceful plea of the elimination of the nuclear weapon. There is a most important. There is a USSR, the President of Gorbachev of Soviet Union. There is a Prime Minister of Rajiv Gandhi made a forcefully pace of the elimination of nuclear weapon. There is a most important point here. The Delhi is a declaration of immigrated the 10 principle of building of nuclear weapon of free world. In 1988, the Rajiv Gandhi proposed on the action plan for the uranium their nuclear weapon free and non-violent world order. The action plan is invocated to the blinding commitment by all the nations of their elimination of the nuclear weapon in stage by 2010. India is also an original signature to be the chemical is a weapon conventions having the signature it's on Jan 90. Jan is a 14 1993 and was among their first 65 countries to have ratified their threat. In 1993, India is sponsored our resolution on their comprehensive test ban along with the USA within the overall framework of advancing toward nuclear disarmament. India was this race went to the final version of the CTBT and was the rushed through there without consent. And it is a failed to address the security reason of India and it is a probability stood against the sterility of function in which the some test use or canal where there is a spotocatted nuclear test were not in way. India has a conduct of nuclear test in 1998 could be a link to be unfair framework of CTBT. Though many initially muscular door stood India as a test are negative development for discriminant. India is applied to the
continue to the work for irregular and non-discriminatory nuclear discrimination. The next point here is the most important here. India as a participation in a UNA peacekeeping. There is the most important. India as a participation in a UNA is a peacekeeping. India has a history of participation in UNA peacekeeping operation is a long one. India as a contribution has been to describe as a excellent by many political observers in UNA. India as a contribution has been to the knowledge by the member of international communities. The peacekeeping stand for a prevention and containment and termination of the hostilities between or within the state through their non-offensive activities of multinational force of soldiers and police and civil people sent up to the authorities of United Nations with the consent of the countries concerned. Peacekeeping a nation change in its scope and nature according to the need of conflict situation. India has taken part in a 35 of UNA peacekeeping operation in a 4 continent. It is the most significant contribution has been to peace and stability in Africa and Asia. Presently, India is ranked as the larger troops of contribute to UNA. The saga of India as a role in the UNA peacekeeping began with the establishment of the United Nations as emergency force, means UNEF, in the Gaza Strip and the Sinai in 1956 after Israel war against Egypt ended. The Congo in Africa benefited of significantly from a troop presence. India has contributed to keep a unit and integrated of that history in the 1960th centuries. After the end of Cold War, India has contributed to UN peacekeeping is remained significant equally. It is not a more a military person at the request of the United Nations Security Journal of Angola and Cambodia and Somalia, the El Salvador and the Sierra Leone, etc. The many of these countries were victims of chores is caused by the civil war. Non-government machineries is a collapsed was the declaratory of India sent not just troops but police, doctor, engineers and administrators. हमारे समक्ष जो यहाँ पर आया है भारत और संयुक्त राष्ट्र. देखिए भारत और संयुक्त राष्ट्र के साथ क्या संबंध है, दोनों में क्या विशेषताएं हैं, दोनों किस विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं. कहते हैं अगर पहली पॉइंट के अंतर्गत हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र की शांति और निशस्त्रीकरण प्रयासों में भारत का योगदान. देखिए भारत ने सदैव ही इसका वकालत किया है कि वेपन जो किसी भी देश के पास न हो, क्योंकि न्यूक्लियर बम जो होती है कई मायने में खतरनाक होती है और इसका प्रभाव जो हमने देखा भी था हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है, जिसने बहुत ही जो है तबाही मचाया था. तो इसलिए भारत ने हमेशा ही निशस्त्रीकरण के प्रयासों में लगा रहा है और ये हर देश को जो है मानने में और मनाने में लगा रहा है. कहते संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से एक था और इसे क्रियाकलाप का जो है औपचारिक आधार संयुक्त राष्ट्र चार्टर था और विश्व के मामले में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी. 50 से भी अधिक वर्षों से संयुक्त राष्ट्र राज्यों के बीच संबंधों को बनाने और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को नियंत्रण करने में सहायता कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र के ने नागरिकों की सुरक्षा, शांति और विकास के बढ़ावा देने में योगदान भी दिया है. निशस्त्रीकरण के द्वारा संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शांति की दिशा में भी योगदान दिया है. भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण के प्रयासों में अधिक योगदान दिया है, यानी भारत ने सदैव ही निशस्त्रीकरण के लिए वकालत किया है. निशस्त्रीकरण खतरनाक हथियार पर अंकुश लगाना होता है. देखिए निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है हथियार के बिना या हथियारों पर अंकुश लगाना. तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि निशस्त्रीकरण किसे कहते हैं तो आप इतना भी लिख दो कि इससे जो है हथियारों पर अंकुश लगाने को ही निशस्त्रीकरण कहते हैं, ठीक है. और इसका भारत जो है सबसे अधिक पक्षधर माना गया है. उनमें कमी करना तथा यह संभव विनाश भी करना, ये सब निशस्त्रीकरण के अंतर्गत ही आता है. भारत ने आज़ादी के बाद ये सब विश्व जो है निशस्त्रीकरण के उद्देश्य को
पाने के लिए भेदभाव रहित प्रयास किए हैं। परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता को चलते भारत ने सदैव ही यह विश्वास व्यक्त किया है कि परमाणु हथियार से युक्त विश्व की भूमंडलीय सुरक्षा बढ़ेगी। इस प्रकार भारत ने सदैव ही परमाणु के विनाश और निःशस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है तथा उसे संपूर्ण निःशस्त्रीकरण की ओर पहला कदम भी माना है। यानी भारत ने सदैव ही इसका निःशस्त्रीकरण के लिए अपना सदैव अपना महत्वपूर्ण प्रयास करता ही रहा है और कर भी रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के निःशस्त्रीकरण के प्रयासों में विचारों, संक्रमणबद्धता और पहल करने और भेदभाव को समाप्त करने के पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1948 में भारत ने परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय शस्त्र भंडार में कटौती करने और परमाणु ऊर्जा को शांति कार्य में प्रयोग करने का प्रस्ताव सदैव रखा है। 1950 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति कोष बनाने का भी प्रस्ताव रखा था और इसके धन के विनाशकारी हथियारों को कम करने और विकास कार्य के लिए प्रयोग किए जाना भी भारत ने इस प्रस्ताव को रखा था। 1953 में भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की वकालत भी की थी और 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध समझौता का पहला सदस्य भारत ही था। कहते हैं 1964 में संयुक्त राष्ट्र एजेंडा के आधार पर हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध की पहल भी भारत ने ही की थी। यानी भारत सदैव शांति का ही विचारकों में से एक माना जाता है, परंतु कुछ देशों के द्वारा ये समझौते के अनुसार कुछ हथियारों पर दृढ़तापूर्वक प्रतिबंध न लगाए पाने से इसके उद्देश्य को पूर्ति नहीं हो सकी। यद्यपि हमारे देश ने यथाकथित रूप से इस समस्या का विरोध किया है। 1984 में भारत ने अर्जेंटीना, यूनान, मस्को, स्वीडन और तांजानिया के साथ मिलकर 6 राष्ट्र 5 महाद्वीप शांति उपक्रम का आरंभ भी किया था। 4 वर्ष बाद सोवियत संघ के राष्ट्रपति गुर्बाचोव की भारत यात्रा के दौरान एक संयुक्त घोषणा के तहत राजीव गांधी ने भी परमाणु हथियार के विनाश के लिए अपील की थी। कहते दिल्ली घोषणा में परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के 10 सिद्धांत बनाए भी गए थे। 1988 में राजीव गांधी ने एक कार्य योजना का प्रस्ताव भी रखा था जिसका उद्देश्य विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त और अहिंसात्मक बनाना था। इस प्रस्ताव को तहत सभी राष्ट्रों को 2010 तक विभिन्न चरणों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए वचनबद्ध होना था। भारत जैविक हथियारों के सम्मेलन में हस्तक्षेप करने वाला मूल्य सदस्य था और 14 जनवरी 1993 को इस पर हस्ताक्षर पर पुष्टि करने वाले 65 देशों में पहला देश भारत ही था। कहते हैं 1993 में भारत ने परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में अमेरिका के साथ ही संकल्पबद्धता को समर्थन भी दिया। जब व्यापक परीक्षण प्रतिबंध समझौता बिना सर्वसम्मति के सफल हो गया तो भारत इससे बहुत ही आहत हुआ और यह भारत के सुरक्षा प्रयासों के संबंध करने में असफलता भी रहा और इन कारणों से भारत काफ़ी हताश हो गया, क्योंकि भारत चाहता था कि जो परमाणु हथियार है वो सदैव के लिए नष्ट हो जाए और इससे देश को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। इस प्रकार भारत दृढ़तापूर्वक अपने निश्चय पर अडिग रहा। 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण को व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में न्यायविहीन ढांचों से जोड़ा जा सकता है। यद्यपि कुछ राष्ट्रों ने आरंभ में इसे निःशस्त्रीकरण के विपरीत माना। भारत ने बिना भेदभाव के परमाणु निःशस्त्रीकरण के संकल्प को दोहराया, लेकिन कहते हैं जब सबके पास हथियार होगा तो भारत का शकल देखता रहेगा सभी को, तो इसलिए भारत ने भी अपने परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया। पश्चात हमारे समक्ष दूसरा पॉइंट आया है संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में भारत का योगदान। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में भारत ने प्रमुख योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयास में भारत के योगदान का इतिहास बहुत लंबा रहा है। कई राजनीतिक प्रेक्षकों ने भारत के इस योगदान की सराहना भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों द्वारा भारत को इस योगदान को स्वीकार भी किया गया है। शांति कायम करने का अर्थ है बहुराष्ट्र सैनिक, पुलिस और आम जनता की शक्ति द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सलाह से किसी भी देश में आंतरिक अथवा अन्य देशों के साथ संघर्ष को रोकना, कम करना, समाप्त करना होता है। शांति कायम करने वाले देशों की भूमिका संघर्ष और विवादों की स्थिति से अनुरूप माना जाता है। शांति कायम करने वाले इस राष्ट्रों को कार्य क्षेत्र एक विरोधी इसी कारण बदल गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 महाद्वीपों में चलाई जा रही शांति निर्णय की 35 गतिविधियों में भाग भी लिया है।
इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान अफ्रीका और एशिया में शांति स्थिरता लाने में है। वर्तमान में भारत में संयुक्त राष्ट्र को सबसे अधिक सैन्य शक्ति योगदान देने वाला देशों में माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान की भूमिका 1956 में तब आरंभ हुई जब इजराइल के मिस्र के साथ युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल की गाजी पट्टी के सिनाम में स्थापित हुई। अफ्रीका ने कांगो को भारतीय सैनिकों की उपस्थिति का लाभ हुआ और 1960 के दशक में एकता और अखंडता कायम रखने में भारत बहुत ही सहायक रहा। शीत युद्ध के बाद भी संयुक्त राष्ट्र में भारत का योगदान बना ही महत्वपूर्ण था और सैनिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के निवेदन पर अंगोला, कंबोडिया, सोमालिया, अल सल्वाडोर और सिएरा आदि में भेजे गए। अनेक देश गृह युद्ध के कारण उत्पन्न अव्यवस्थाओं के शिकार थे और भारत ने न केवल सेना ही भेजी बल्कि पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक भी भेजे थे। There is the most important our next topic. India has a case for the permanent seat in a Security Council. There is the most important topic here. India case the permanent seat in the Security Council. As you already know, the efficiency of peace and maintenance in the world depend on the effectiveness of the Security Council. But Council has suffered in his regard due it is outdated and changed membership. And presently there is a permanent membership of Security Council in a confined to the USA, Russia, Great Britain, France, and China. However, such a composition of Security Council does not be take into account the currently global power configuration, which has a change sign the day when they are countries were indicated as the permanent members. Since India has emerged as a fourth fastest growing economics and also become a leadership it has provided in all international fora. Its a contribution to be a UNA is a peacekeeping. It's a track record in the exposing their causes of the third world, and that India has a strong case of permanent seat in the Security Council. We are getting support for the many friendly countries. A final decision on the matter is likely to be take some time because it is a complexity. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अगला पॉइंट, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मामला। देखिए, कहते हैं सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता का जो मामला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि विश्व शांति कायम करने की क्षमता सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर निर्भर करती है, परंतु यह सुरक्षा परिषद अपने रूढ़वादी और पुराने सदस्यों के कारण कष्ट में रही है। यानी सदैव ही रूढ़वादियों का विचारधारा को सुरक्षा परिषद ने अपने ऊपर लाद रखा है। कहते हैं वर्तमान में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। कहते हैं इन्हीं के दबाव के कारण सुरक्षा परिषद इस पर फैसला नहीं ले पाती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अमेरिका के दबदबा, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस और चीन की दबदबा इसको कुछ भी करने से रोकती है, यानी इसको रूढ़वादी बनाती है। परंतु सुरक्षा परिषद के इस गठन का वर्तमान विश्व की शांति संरचना का कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि आज विश्व 1945 की तुलना में बिल्कुल ही बदल चुका है। आज विश्व सभी से दो चार हाथ करने के लिए सदैव ही तैयार रहेगा। भारत सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में इसकी नेतृत्व विश्व में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति बनाने के प्रयासों में इसके योगदान और द्वितीय विश्व के लिए इसके योगदान को देखते हुए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का यह एक प्रबल दावेदार के रूप में प्रस्तुत हुआ है और कई मित्र राष्ट्र इसे अपना समर्थन भी दे रहे हैं। और इस मामले की जटिलता के कारण इस पर अंतिम निर्णय लेने में कुछ और समय जरूर लगेगा, लेकिन भारत भी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा और ये अपने स्थायी सदस्यता भी प्राप्त करने के लिए सदैव अग्रसर हो रहेगा और ये आने वाला समय में भी आप देख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हम भारत की नीतियों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया, समझा और जाना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें से दो बातें इंपॉर्टेंट ये है, पहली बात ये होता है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का सहायता करना है। और दूसरी बात ये होता है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा, अगर आप जब भी कोई टॉपिक ढूंढिएगा तो आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर का टॉपिक नहीं प्राप्त होगा।
टॉपिक वो प्राप्त होगा जो पहले यूट्यूब पे मौजूद है। अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो, अगर इसके बातों को समझ में अच्छे से आता है, तो आपको जो है इसको सब्सक्राइब करके चैनल रखना ही आपकी बुद्धिमत्ता का परिचालक होगा। इससे ये होगा कि आपको जो है यूट्यूब पे त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है होम पेज प्राप्त हो जाएगा और इसमें सारे वीडियो जो है वीडियो वाले ऑप्शन में दिखेंगे, जहाँ पर जो वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है, उसको देखिए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।